Like, do you people know there are snakes in colleges? Human snakes. गाँव की बात करो, आपको पता होगा कि पूरे गाँव में, बगल वाले गाँव में कौन रहता है. What we did, we took the gaddas of our bed and we took them to the river side. मैंने थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत. ये भी नहीं, इससे ज़्यादा मुझे. Why can't you relate this story with your ऋषिकेश वाला ट्रिप? हाँ, करते हैं. इवन मैंने आपको भी देखा है बहुत बार, जब मैं आपको रील भेजता हूँ आप क्या करते हो, मैंने नोटिस करा है, तुम भी खोलती हो, तुम भी इमोजी डाल के छोड़ देते हो. फिर मैं बाद में पूछता हूँ तुमने ये रील देखा था, कौन सी रील? लेकिन मैंने देखा. मन में क्या करता, अच्छा मेरा फोन यहाँ सामने रखा हुआ है, एक काम करता हूँ ऐसे खोल के ना देख लेता हूँ इसने क्या मैसेज करा हो. अच्छा कुछ नहीं करा, कोई नहीं यार रहने देते हैं, बिजी होगी, काम कर रहा हो. अभी मैं पिछले 2 दिन से कैश यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक रियल कनेक्शन फील होती है. जब 500 रुपए खर्च होता है ना तो मुझे पता चलता है कि भाई 500 खर्च हुए हैं. एनिमल किंगडम की हायरार्की आप देखोगे तो वी आर एट द टॉप लेवल, बट स्टिल वी आर सफरिंग अ लॉट. जब वेकेशन मोड आता है समर वेकेशन में, तब सबकी इंस्टा स्टोरीज पे होता है, कोई मनाली गया है, कोई आउट ऑफ इंडिया गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है. ये बताओ आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स? बिकॉज आई नो यू आर अ पब्लिक प्रोफाइल एंड आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अराउंड 1900. 1900? Yeah, approx, I think so. मैंने देखा नहीं. Okay. बड़े लोग कहाँ देखते हैं. एंड मुझे ये बताओ कि अगर इन 1900 में से you have to call someone for, you know, if you are in a situation and you really have to talk to someone. So ऐसे कितने लोग हैं out of these 1900 people that you can really, you know, just blindly call it? It's a good question actually. I really never thought about it. Like, to, you know what, calling someone and talk about my, like talk about anything. It's Yeah. not just about my problems. Sometimes we feel like we need someone with whom, you know what, I can open my heart. Yeah. I can talk about everything without any judgment. And honestly, जैसे आपने बोला कि I have a public profile. I Yes. have 1900 followers, but I don't even consider a single one As a true friend. as a true or real connection Yeah. or a friend with whom I can call and talk to about anything. I have a kind of like, you know what, superficial friendship with them. Sometimes whenever I meet in a public place or like when they text me on Instagram, I like we just talk about like, hi, how are you doing? It's a surface level Like, conversation. like what have you been up to? How's life? This and that, and that's it. Apart from that, what I'm feeling actually from inside, वो सामने वाला नहीं जानता है. Obviously. Because neither I'm willing to talk about that. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइक हम अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में लेके जाते हैं, चाहे वो किसी के साथ एक फ्रेंडशिप की कनेक्शन हो या एक लवर की कनेक्शन हो, एक हस्बैंड और वाइफ की कनेक्शन हो, तो वी गो टू अ लेवल ऑफ एरिया वेयर वी फील वेरी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट एनीथिंग. ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं हुआ. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट रियली अलोन. I have a beautiful family. Yeah. Even I'm so close to my mother Yeah, and father, sister and papa. But literally, I didn't even consider to talk to them about. Like there were few things that I really didn't want to talk to them. And वो फिर एक ऐसे सिनेरियो थी जहाँ पे I was really feeling alone instead of having a beautiful family or public profile on Instagram. I have like a few friends. तो कुछ ऐसे सिनेरियो थे. But Vivan, I think कि ना we are not in that scenario जिससे आप बात कर रहे हो. You are not alone because like you said, you had your parents, your sisters, your friends or anyone जो दिल्ली में रहते हो या कहीं भी रहते हो. But we were actually feeling lonely because कि इतने लोग हैं, but still I don't feel like I can truly talk to anyone regarding how I'm feeling. Yaar, you know what? See, I'm completely agree with your words. But what I'm feeling nowadays, like if we are sitting for lunch or dinner with our family, like अगर मेरा सोच के देखो, मेरे 2 भाई हैं,
है ना, 2 बहन है एंड वी आर ऑल sitting together Yeah. for lunch or dinner. What we do, We like see while our phones. we like instead of talking, what we do, we scroll down, we watch something. मम्मी अलग देख रही है, पापा अलग देख रहे हैं, भाई True. अलग देख रहा है, बहन अलग देख रही है, या कोई टीवी देख रहा है. True. अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो what we are doing right now, we are indulged in this, you know what, modern world social media where we are just scrolling. एंड फिर जब हम स्क्रॉल करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि राइट नो इफ यू आर सिटिंग विद मी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सोच के देखो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट ग्रैब योर फोन और मैं फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर दिया. यू विल फील लाइक ब्रदर लिटरली तो फिर मेरा भी मन नहीं करता then मेरा बात भी मन करने नहीं का. करेगा हाँ. बिकॉज देयर इज नो लाइक वी आर नॉट फीलिंग अ रियल कनेक्शन हियर. Yeah. इट फील्स लाइक कि सामने में बैठा हुआ है फिर भी आई एम फीलिंग लाइक आई एम वेरी डिस्टेंट फ्रॉम It's दिस like पर्सन. there are two people sitting, but not sitting as friends or like college mates, but as two separate individuals just sitting together and doing their own work. They are yes, Yeah. and they are doing their own things. And deep down, we are suffering. Like at some point, our subconscious mind is very, attentive. It can, sense anything. कि मेरे सामने में पर्सन बैठा हुआ है एंड इफ ही इज रियली इनटू टॉकिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोन दूर रख के मुझे इनसे बात करना चाहिए. Yeah. बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग व्हाट वी डू, थोड़ा बहुत बात हो गया, हाय हाउ आर यू, दिस एंड दैट, एंड आफ्टर दैट हम अपने अपने फोन में लग गए. होता क्या है, अगर आप चलो ठीक है, अगर मैं बहुत बार मेट्रो में जाता हूँ या पब्लिक प्लेस में जाता हूँ तो मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये देखता हूँ कि लाइक वेदर वी आर इन अ क्यू फॉर एनीथिंग, व्हाट वी डू, वी ब्रिंग आउट आवर फोन, वी स्क्रॉल डाउन विदाउट एनीथिंग. It's it's default. Yeah. It's a default Yeah, system. इवन व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया, व्हाट वी डू, जब अगर कभी हम बैठे हुए हैं एक अकेलापन में बैठे हुए हैं, व्हाट वी डू, फोन ग्रैब करा, व्हाट्सएप पे देखा किसने क्या स्टेटस डाला है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, ये देख के चाहे मैसेज इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वी डोंट सिट बाय आवरसेल्व्स. और हम कभी अपने आप को अकेलापन में बिठा के कभी सोचने की कोशिश नहीं करते, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, और एक रिफ्लेक्शन भी नहीं जाती है चीजों को लेकर. तो दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग लाइक भाई कोई तो होना चाहिए यार जिंदगी में. लाइक फिर लोगों की मन में आना चालू हो जाता है यार व्हाट अबाउट अ फ्रेंडशिप और अ पार्टनर अपोजिट सेक्स के साथ. बट अगर हम लाइक इन चीजों के बारे में लाइक थोड़ा यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन, दैट्स टोटली राइट. बट एक ये भी चीज है ना, दैट जैसे आपने बोला व्हेन वी आर सिटिंग विद समवन, वी आर ऑन ओन फोन्स एंड हम टेबल पे खाना खा रहे हैं, वी आर एट ओन फोन्स. बट अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हूँ या दोस्तों के साथ बैठी हूँ, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डू वी रियली इवन हैव समथिंग टू टॉक अबाउट? क्योंकि हम लोग बहुत सुपरफिशियली बातें करते हैं, अपनी एक सुपरफिशियल इमेज लोगों के सामने रखे कि या आई एम ऑल ग्रेट, आई एम रियली फाइन, मैं आज अपना बर्थडे मना रही हूँ या कोई और इवेंट है, खाना बहुत अच्छा है, या तेरे कॉलेज में क्या चल रहा है. बट डीप डाउन मैं अपने इवन फ्रेंड ग्रुप के साथ बाहर जा रही हूँ, सो इवन देन आई एम नॉट इंडल्जिंग इन अ वेरी डीप और एक्चुअल कॉन्वर्सेशन, बट इन अ वेरी सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन. तो जब ये कॉन्वर्सेशन हो जाती है ना, हम मन ही सोचते हैं यार कि अब तो कुछ है नहीं दिमाग में बोलने के लिए, तो फोन ही देख लेते हैं. सो यू नो व्हाट, हम ये सुपरफिशियल वाला जो कनेक्शन फील करते हैं ना, इसकी कारण क्या है कि व्हाट इफ अगर सामने वाला बंदा या बंदी को पता चल गया मेरी वीकनेस, तो वो शायद मेरे को जज करेगी, वो मेरे को छोड़ जाएगा, है ना. दे विल थिंक मी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता. तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक डर बना होता है कि अगर मैं इससे ज्यादा क्लोज हुआ ना तो शायद ये मुझे जज करेगा या मुझे वहां से छोड़ देगा या ये मुझे एक दूसरा नजरिया से देखेगा. एंड आई थिंक एट सम पॉइंट हम सब सोचते हैं, एट सम पॉइंट हम सब सोचते हैं और हम कहीं ना कहीं सही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीप डाउन we are suffering, we are dying. We are social creatures, we are human beings. Literally we are human beings. It means like we are a pack of animals. वहाँ पे like we are a social animal. Social animal means what?
बोला जाता है, अगर मैं अभी रिसेंट एक डेथ रेशियो की बात करूं जापान की एक नॉर्मल एवरेज एक ह्यूमन लाइफ की टोटल जो ईयर एक एवरेज स्पेंड ईयर है, दैट इज अराउंड 90 ईयर्स, और इन इंडिया इट इज लाइक 60 ईयर्स. व्हाई दिस डिफरेंसेस? जब मैंने आर्टिकल पढ़ा, इवन मैंने ये आर्टिकल कल रात को पढ़ा, देयर इज टोटल 5 सिटी जिनकी एवरेज लाइफ स्पेन इज मोर देन 90 ईयर्स है. ओके. है ना? एक जापान की 2 सिटी आती है, एक मेक्सिको की आती है, एक यूएसए की आती है, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं है. तो जब मैंने इनके डीप डिटेल्स में गया ना, तो आई गेट टू नो कि बोला जाता है लोग शराब पीते हैं अभी, ठीक है, अभी कि जो लोग शराब पीते हैं ना, उनकी नजरिया अलग है, वो बस बैठ के पीते हैं, ठीक है. लेकिन अगर सोच के देखो, अगर आप एक 4-5 लोगों के ग्रुप में बैठे हो, दे आर जस्ट ड्रिंकिंग और गेटिंग अनकॉन्शियस. बट एक्चुअल में जब मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि वहां के लोग साथ में बैठकर शराब पीते हैं, वो भी लोकल ट्रेडिशनल शराब. राइट. अब वो क्या करता है, जब आप शराब पीते हो ना, जब आप लोगों के साथ शेयर करके चीजों को करते हो ना, पीते हो, तो आपकी जो क्या बोला जाता है, आपकी जो हार्मोन है ना, हैप्पीनेस हार्मोन, वो काफी ज्यादा ट्रिगर होता है. देन एट द सेम पॉइंट यू फील लव्ड, सीन और अडोर्ड बाय योर क्लोज वंस, और दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट. वहां पे वी फील वेरी थ्रिल्ड फ्रॉम इनसाइड, वी फील वेरी हैप्पी. that's the benefit, that's benefit number 1. दूसरा क्या है, वहां पे उनकी एक सोशल कम्युनिटी है, कि वहां पे कुछ भी काम होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में करेंगे, वी वोंट डू इट इंडिविजुअली. अभी मैं बेसिकली दिल्ली में चीजों को नोटिस करता हूँ, तो क्या होता है, अगर कोई आंटी अपने घर में एक पूजा रखी है, लोग तो आते हैं, लेकिन लोग पता है क्या क्या सोच के आते हैं और क्या करके आते हैं, कि यार मुझे ना मन तो नहीं है जाने का, लेकिन जाऊंगी नहीं. 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, बुरा मान जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. फिर भी हम क्या करते हैं, अपना सप्रेशन को सप्रेस करके, अपनी हार्मोन्स को सप्रेस करके, अपनी इमोशंस को सप्रेस करके हम जाते हैं. क्यों जाते हैं? कि सामने वाला प्लीज्ड हो जाए. दुनियादारी. क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है. पहले की सिनेरियो अलग थी. पहले लोग क्या होता था ना, अगर घर में पूजा भी होती है ना, अगर आप उसे इनवाइट भी नहीं करा है, तो वो आंटी आके आपके घर में बैठेगी, आपका पूजा शुरू होने से लेकर पूजा खत्म होने तक वो आंटी बैठेगी. एंड दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ एक ह्यूमन सोशल क्रीचर. बट वो सब चीजें हम खो रहे हैं एट द मोमेंट, बिकॉज राइट नाउ वी आर सो बिजी, वी हैव आवर ओन थिंग्स टू डू. अगर हमारे पास कुछ चीजें नहीं भी है करने को, तो व्हाट वी डू, वी गो इन आवर रूम, वी क्लोज द डोर and we scroll down for like 3 hours. We are checking out someone else's lives, and we feel like, bro, literally, am I lagging behind? Am I fucked up? Am I lonely? I have no I'm not feeling a real connection with people, and that is the exact moment we start feeling more alone. Sorry, more lonely, not alone. The thing is कि हम जब वेकेशन मोड आता है समर वेकेशंस में, सबकी इंस्टा स्टोरीज पे होता है, कोई मनाली गया है, कोई आउट ऑफ इंडिया गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, सम आर गोइंग विद फ्रेंड्स, सम विद फैमिली, सब लोग घूम रहे हैं, एंड वी आर सिटिंग एट अ होम एंड वी थिंक, यार मेरे साथ कोई है ही नहीं जाने वाला. यार क्यों पता है, क्योंकि just tell me one thing, when was the last time you sat alone in your room and you reflected on your things? When was the last time? That happens once in a blue moon, but once in a blue moon. Once in a blue moon. Why? Because बाकी के टाइम इतना मेंटल स्पेस ही नहीं होता बैठ के सोचने का. So that's the real problem. Yes, we are busy. That's true. हमारा दिमाग थक जाता है कि हम अब और सोचें. We just switch off our mind and we want to sleep. बिल्कुल. And कभी-कभी पता है, we don't sit alone and we reflect on our things. एक मेजर प्रॉब्लम है. जब हम अकेले बैठते हैं ना, तो अकेले में हमारी दिमाग एक्टिवेट हो जाती है, हमारी दिमाग में चीजें चलना शुरू होती है. देन दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन थिंग्स, कि हमें आगे करियर में क्या करना है, अगर मुझे फ्रेंडशिप बनाना है
अगर मुझे इस फ्रेंडशिप को आगे लेकर जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ये सस्टेन हो सकता है, दिस एंड दैट. बट राइट नो वी हैव आवर ओन वर्ल्ड एंड वी आर completely occupied in ourselves. Literally, we are completely occupied in ourselves. We don't think so much about other people. And जब होता है ना, जब आप सेल्फ ऑब्सेशन में खो जाते हो ना, वो चीजें बहुत हजार्डस होती है. एज ए ह्यूमन बीइंग वो आपको अंदर से खोखला बना देती है. सेल्फ ऑब्सेशन कि यू नो व्हाट, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम ब्यूटीफुल. कभी कभी देखा है आपने इंस्टाग्राम पे अधिकतर लोग सोशल मीडिया पे इंटरनली they are dying, they are suffering from anxiety, they can't sleep at night, they have tons of problem. But at the time जब एक सेल्फी क्लिक करना हो या एक फोटोग्राफ्स लेना हो तो एक फेक स्माइल, एक फेक इमोशंस आ जाती है and we post it with some fine caption, fine music and fine, you know what, अगर हमारे बैकग्राउंड काफी अच्छी है तो वो बैकग्राउंड को भी कंसिडर करते हैं. तो प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज कि डोंट यू थिंक कि एक अपने आप में आई थिंक देयर आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी. एक जो अपने आप से बहुत ही खुश है, लाइक खुश नहीं बट दे प्रिटेंड लाइक दे आर द बेस्ट लाइक यू सेड. एंड कुछ है जो internally they are not very happy with themselves and they're looking for outer validation and कि मेरा friend group नहीं है. Like I'll tell you a personal story. When I joined college first semester, हम सब like school friends, we all get separated into different colleges. So when I joined college, first day college का सबसे बड़ा group होता है. I remember we had lunch and there were 12 to 13 people at that lunch that day. And अगले दिन ही वो group आधा हो गया था. क्यों? It's just a college thing. आधा हो गया था. And उसके बाद आधे का like 6 to 4 to 3. Then उसके बाद I used to see people going to college fest and concerts and having lunch together, going out after college and anything. But I never had that friend group in semester 1. I used to feel so lonely. I used to look out for people. एंड कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ बैठ के बात करूं. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड लिव दैट कॉलेज लाइफ ऑफ हैंगिंग आउट, गोइंग आउट टुगेदर. बट उस चक्कर में ना आई समवॉट बिकेम डेस्परेट टू हैव फ्रेंड्स. एंड मेरा एक दो फ्रेंड्स बने बट उनके लिए I was not so important, but for me they were very important because they were like the first friend of my college. But then, like, do you people know there are snakes in colleges? Human snakes. So in second semester, I learned the art of sitting by myself. I can go to college alone. I can travel in the rickshaw alone, go there, do the whole classes, have my lunch together. I am self-sufficient in college. I don't need an external person to come and sit with me. कि वो नहीं आएगा, वो आएगा तो I am very happy. I'll enjoy their company. But अगर कोई नहीं भी पूछ रहा ना, तो I am more than happy with myself now. And impressive. And you know what? And even you know what? Even I observed this thing in you. Like since the time when I get to know you, I realized it. Like you improved a lot. Like you like to see right now you don't need any companion. If you're in college and if you don't have any like friends like around you, you don't like you won't bother about yourself कि यार मेरे पास कोई friends क्यों नहीं है. कोई तो होना चाहिए था. My college one knows. I'll go there. I'll take classes. Then either I'll open my laptop and watch a movie, or I'll read a book. I am more than happy with myself. And uske baad, I became so silent and mysterious that people used to look at me. And one day a girl came and she was like, how are you always sitting so alone? I'm like, I am just enjoying my own company now. Oh God. I am not alone, neither I'm lonely. Like I am alone, but I am happy with myself. I'm not lonely. I am not seeking people to come and give me validation. There is a vast difference between being lonely or being alone. Lonely means you don't have anyone To talk.
to share your, you know what, things that you really want to talk, you really want to open your heart and talk to that person. That comes under loneliness. And you know what, अभी एक recent data मैंने ऑक्सफोर्ड की पढ़ा है, उसमें बोला जाता है कि loneliness is very hazardous. It's like smoking 15 cigarettes in a day. Okay. So can you see that? And the case is rising like exponentially. And This even rate has increased, you know what, up to like 45%. even though we are living in the zamana of social media, Social media, I think we are living in the best era of human human beings. human networking. Basically. Yes. I think इससे बढ़िया era आ भी नहीं सकता है, because we are the highest in our hierarchy. अगर एनिमल किंगडम की हायरार्की आप देखोगे तो we are at the top level, but still we are suffering a lot, we are feeling a lot, And you know, we are dying, we are killing ourselves, doing tons of things. even we see that कि social media है, network है, access है. Like if I'm in India, I can talk to someone immediately living in US or something like that on a video call. I can see them. अब वो time नहीं है that to talk to someone I have to write letters or wait for a 30-minute phone call once a week. I can talk to that person immediately through WhatsApp. But even after so much connectivity, we are, you know, हम जितना लोगों से Instagram पे connections बढ़ाए जा रहे हैं, उतना ही हमारे रियल लाइफ कनेक्शंस कम हो रहे हैं. सोचा आपने क्यों? Why are we losing? Because you know what I think is that हम Instagram पे अपनी इतनी अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमसे एक्चुअली में बात करना चाहेगा ना, उसे लगेगा यार Instagram पे तो ये क्या क्या बनती है, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है. Okay, so you know what? Let's be the brutal honest. Let me be the brutal honest about this. Yeah. Why we are not feeling the real connection? बताओ. What's the real problem? Tell me one thing. मैं जब 22 में शिमला गया तो मेरे पास मैं बिल्कुल भी कैश लेके नहीं गया था. I went Shimla without carrying cash. I had UPI, I had online payment, and I did all of my payments through online. जब मैं चीजों पे रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी याद भी नहीं आता है कि आई थिंक मंथ गुजर जाते हैं और मैं कभी कभी ओरिजिनल नोट को टच भी नहीं कर पाता हूँ, फिजिकल टच, कि एक्चुअल में ओरिजिनल नोट की टच जो टच करते हैं उसकी फील कैसे होती है, हाउ इट एक्चुअली फील्स. होता क्या है, मुझे बहुत बार रियलाइज नहीं होता है कि मेरे अकाउंट पे चलो इतना बैलेंस है ना, मैं पेमेंट करते जा रहा हूँ, उतना रियलाइजेशन नहीं होती है. लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मंथ जब एक स्टेटमेंट बन के आती है ना बैंक के तरफ से कि यू हैव स्पेंड दैट मच मनी इन अ मंथ, देन आई एम लाइक रियली फक, आई डिडंट इवन रियलाइज इट. और वही पैसा अभी मैं पिछले 2 दिन से कैश यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक रियल कनेक्शन फील होती है. जब 500 रुपए खर्च होता है ना, तो मुझे पता चलता है कि भाई 500 खर्च हुए हैं. लेकिन मैं वही जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ ना, तुम 1 लाख की भी ट्रांजैक्शन कर लोगे तो पता नहीं चलता. ऐसा चलता है कि हाँ कुछ, चलो फॉर अ सेकंड ऐसा लगता है कि चलो कुछ एक ट्रांजैक्शन हुई है, दैट्स इट. इट्स जस्ट अ नोटिफिकेशन 1 लाख हैज बीन डेबिटेड. एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब यही है कि राइट नाउ वी आर लूजिंग द फिजिकल टच, रियल कनेक्शन. पहले क्या होता था, पहले सोशल मीडिया थी बट इतना हाइप्ड नहीं करा था. अभी क्या है, जब मैं घर गया ना, तो हमारे यहाँ पे क्या होती है, ठंड में डिनर बनने के बाद वी ऑल हैव आवर डिनर. आफ्टर दैट वी विल सिट इन अ सर्कल, बीच में आग लगाई जाती है और वहां पे हम बातें करते हैं, अपनी पुरानी कहानियां बताते हैं कि तुम बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, ये सब सारी कुछ चलती है. फिर मम्मी के बारे में बताया जाएगा, फिर कुछ अगर इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि ऐसा हुआ था तो वो सब बताई जाइए. तो अभी मेरे को क्या हुआ, हम लोग वही सर्कल बना के सबको ही बैठे, बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, पुरानी बातें छेड़ी जा रही थी. लेकिन मैंने क्या रियलाइज करा कि मेरे घर में एक बच्चा बैठ के सब बात कर रहे हैं, वो फोन में लगा हुआ है. कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस करा पापा भी फोन पे लग गए.
क्योंकि एक ऑकवर्डनेस आ जाती है, ऑकवर्डनेस साइलेंस आ जाती है कुछ हाँ। टाइम के बाद। तो फिर आई वाज लाइक, मैं ऐसे बैठ के देखे जा रहा हूँ, मम्मी मेरे को देख रही है, मैं पापा को देख रहा हूँ, फिर मेरी नजर उस पे जा रहा है। लाइक बोथ ऑफ देम दे आर इंडल्ज इन देयर फोन, they are they are doing nothing, they were scrolling on Facebook और Instagram. I'm like, क्या कर रहे हो आप लोग? हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। फोन देखने के लिए। तो मेजर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी सोशल मीडिया है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू यूज इट इन अ परफेक्ट वे, बट हम पे इतना हावी हो चुका है ना कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर फोन में एक नोटिफिकेशन भी नहीं आता ना तो मन में क्या करता है, अच्छा मेरा फोन यहाँ सामने रखा हुआ है, एक काम करता हूँ, ऐसे खोल के ना देख लेता हूँ इसने क्या मैसेज करा होगा। अच्छा कुछ नहीं करा, कोई नहीं यार रहने देते हैं, बिजी होगी, काम कर रहा होगा, रख देते हैं इसको। तो प्रॉब्लम इज दिस, हमारी ब्रेन चीजों को लेकर सोचती ज्यादा है। वी आर कीपिंग like we are expecting tons of expectation from others, or that is the exact moment we hurt ourselves. एंड ऑल्सो द थिंग इज कि आप सोचो कि अभी हम लोग एक दूसरे से इतना मिलते नहीं है बिकॉज वी फील लाइक, पहले होता था ना कि हमारे दोस्तों का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, उसको स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, उसको विश करेंगे, कुछ पार्टी वार्टी छोटी सी कर लेंगे। बट अब वो काम मिलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फोन कर लेंगे। और फोन भी छोड़ो, एक टेक्स्ट डाल देंगे हैप्पी बर्थडे यार। तो जब हमारी वो नीड एक टेक्स्ट मैसेज से कंप्लीट हो सकती है तो हम वो एक फ्रिक्शन आ जाता है टू एक्चुअली मीट दैट पर्सन, हैव अ कॉन्वर्सेशन। हमें लगता है यार फोन करके क्या बात कर लेंगे यार, कुछ है ही नहीं बात करने को, बर्थडे तो विश करना है यार। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम यूज टू हो चुके हैं यार इन सब चीजों को लेकर। आपका इमोजी का, अगर मैं कभी इंस्टाग्राम पे किसी को रील भी भेजता हूँ ना, वो बिना रील को देखे क्या करेगा, स्माइल की कैप्शन एक इमोजी डाल देगा, है ना, या हार्ट वाली इमोजी डाल देगा। मैंने देखा है, हाँ करते हैं। इवन मैंने आपको भी देखा है बहुत बार, जब मैं आपको रील भेजता हूँ आप क्या करते हो, मैंने नोटिस करा है, तुम भी खोलती हो, तुम भी इमोजी डाल के छोड़ देते हो। फिर मैं बाद में पूछता हूँ तुमने ये रील देखा था, कौन सी रील? नहीं मैंने देखा नहीं था, मेरे पास क्योंकि तुम बहुत सारी रील एक साथ भेजते हो। एक सेकंड इतनी सारी मैं कैसे याद रखूं? देयर इज टाइम जहाँ पे यू आर टोटली फ्री, जहाँ पे मैं काफी सेलेक्टेड रील भेजता हूँ और वहाँ पे तुम देखती नहीं हो। I'll show you how many reels this guy sent me. But I cannot even remember कितनी इसने भेजी थी मुझे। तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम यूज टू हो चुके हैं इन सब चीजों को लेकर। हम एक रियल कनेक्शन को लूज कर रहे हैं एवरी डे। एट लाइक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे वी आर लूजिंग द रियल कनेक्शन। क्योंकि जैसे भी आपने बोला कि अगर किसी को बर्थडे विश करना होता है, व्हाट वी डू, एक मैसेज सेंड करते हैं, हैप्पी बर्थडे, जो भी नाम है, रमेश, दिनेश, महेश, जो भी नाम है, हम एक वो करके छोड़ देते हैं। लेकिन वही आप क्या करो, एक वॉइस मैसेज डाल दो, हैप्पी बर्थडे रमेश, हैप्पी बर्थडे दिनेश, आई विश यू अ प्रॉस्पेरस लाइफ on a year of wisdom and success, this and that. तो वही बंदा और बंदे के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने I did something good। और पता है हमारी जब पता है क्या होता है, जब हम कुछ आवाज सुनते हैं और देखते हैं ना, और जब एक फिजिकल टॉक होती है किसी के साथ में, तो हमारी बॉडी भी हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है और जिससे हमारी बॉडी भी काफी अच्छी महसूस करती है। आप ये सोचो, जब हम किसी वेकेशंस पे जाते हैं विद फैमिली ग्रुप्स और समवन एल्स, या इवन फ्रेंड ग्रुप में आफ्टर कॉलेज, व्हेन वी सिट एट आवर कॉलेज पॉइंट्स एंड वी जस्ट टॉक, या हम अंताक्षरी खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, those moments are more memorable than talking to someone on text या ग्रुप पे आप कितनी भी बातें करते रहो ना, बट when you आपको जो when you remember those happy moments in life, they are mostly those moments when you are sitting with people and you're just talking। जब हम फ्रेंड ग्रुप की बात करते हैं, लोग क्या इमेजिन करते हैं कि पहाड़ों के बीच में नदी किनारे एक बॉनफायर लगा के सारे दोस्त यार बैठ के बातें कर रहे हैं। We crave that connection. Why can't you relate this story with your ऋषिकेश वाला trip? जो तुमने ऋषिकेश गया था मार्च में, right? I went to Rishikesh with my college society group. And इसमें से कितने लोगों को जानते थे? I know like acquaintance to सब है, because we are in the same society, hi hello सबसे होती है, but like on a friendship level मेरी इक्का दुक्का से ही बात होती थी।
So I was first very hesitant in going कि मेरा कोई actual friend group नहीं है, I'm going alone. मैं रूम किसके साथ शेयर और करूंगी? इसने मेरे से पूछा भी था कि मेरी वहां पे कोई एक फ्रेंड है ही नहीं जिससे मैं खुल मैं के बैठ किसके के साथ बात कर जाऊं? सकती हूँ. Yeah. बट आई टोल्ड हर व्हाई नॉट गो फॉर इट. Yeah. And when I went there, there were around like 30-35 people something going. हम एक ही बस में गए and बस में नाचते नाचते बस and there was a river like a stream near our resort. Late at night, what we did, we took the gaddas of our bed and we took them to the river side. We sat them, कंबल लेके 4 लोग इकट्ठे बैठे and we are sitting in एक कंबल ठिठुर के because it was ऋषिकेश night and it was so cold. हम आधों ने पी रखी है, हम कंबल में ऐसे बैठ के सारे बैठे. And I remember that moment and not when I was scrolling in the bus. I remember those moments because we are humans, yeah. We crave that connection of truly connecting with people, sitting with them, talking, enjoying. यार you know what, see, we are not expert Yeah. that we are talking. We are a normal human being that we felt throughout our life. Yes. And आप भी महसूस किए होंगे कहीं ना कहीं. Hmm. एंड यार सबको पता है कि लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, Hmm. वी नीड कनेक्शन, Yes. वी नीड टच, वी नीड फिजिकल कन्वर्सेशन. We do. ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है. बट हम पता है क्या करते हैं, हम एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं. हम बहुत सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं या करना नहीं करना चाहिए. वो चाहिए, क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा. जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती है ना, तो द वे आई एम थिंकिंग, आई थिंक दैट इज द एग्जैक्ट वे यू आर ऑल्सो थिंकिंग. Yeah. यार मैं इसे कॉल करके बोलूं कि आई रियली नीड अ कंपनी Yeah. टू यू नो टू हैव अ बेटर वन, Hmm. दिस एंड दैट. सबको पता है कि हमें एक रियल कनेक्शन की जरूरत है. Yes. हमें सोशल, लाइक वी आर अ सोशल क्रीचर, Hmm. वी नीड टू बी सोशल. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में कभी दशहरा पूजा होती है, कभी बसंत पंचमी सेलिब्रेट की जाती है, अभी लोहड़ी आएगी, राइट? या लोहड़ी आएगी, आज क्रिसमस है. आज क्रिसमस है. तो ये सब सेलिब्रेट करने का मकसद पता है क्या है? कि लाइक वो फिर ना एक आस पास के लोगों को ना एक साथ लेकर आता है. अपनी बिजी जिंदगी से लाइक कंटिन्यूअसली थोड़ा रनिंग सा से छोड़ो, pause आपस करके थोड़ा सा come together. क्लोजनेस आओ. Yeah. माइट बी स्पेशली टाउन में क्या होता है ना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, Hmm. लेकिन डे बाय डे अगर कोई आपस में हमारी सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, या दशहरा पूजा सेलिब्रेट कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है ना, लोग इन्वॉल्व होते हैं, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है कि ये अभी भी है थोड़ी बहुत जो सोसाइटी को जगा के रखी है. इंडियन मरने कल्चर में नहीं तो दिया. है ही ना. बट अधिकतर जगह नहीं है. इंडियन कल्चर में है, मैं मानता हूँ, अधिकतर जगह नहीं है. Yeah, if you talk about like big cities, like अब गुड़गांव की बात कर लो, you won't even know अगले घर में कौन रह रहा है. एंड अब टाउन की बात करो, गांव की बात करो, आपको पता होगा कि पूरे गांव में बगल वाले गांव में कौन रहता है. भाई वहां पे गांव की खूबसूरती है ना कि वहां पे लोग एक दूसरे को जानते हैं. उनके दादा के परदादा वहां पे पैदा हुए और वहां पे एक दूसरे को सबको जानते हैं. अगर आप अकेले भी बैठे होगे तो भी 4-5 लोग आ तो जाएंगे. 4-5 लोग के आगे पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे अकेले, कुछ खाया, उदास क्यों हो, घर पे सब ठीक है. तो ये है एक गांव की बात. टाउन में यार लोग इतना थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं, इनके पास इतना समय भी नहीं होता, तो दे आर फाइन एट देयर ओन प्लेस. सो वी कांट कमेंट अबाउट दिस थिंग्स. सो लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक. आई थिंक जो जितना हमने बात करी उसका कंक्लूजन यही है कि हमें we should know the art of being alone and sitting alone. कि अगर कोई नहीं भी है बाई चांस, we know we live in a busy world, हर कोई फ्री नहीं होता हमेशा. तो अगर हम अकेले हैं तो हमें अकेले भी खुश रहना आना चाहिए. कि अगर कोई नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि हम दुखी बैठे कि यार कोई नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता. वी शुड नो हाउ टू बी अलोन, बट हमें अपने आप को आइसोलेट भी नहीं करना चाहिए कि हम किसी से बात ही नहीं करते. And you know what? There will be a time where you will feel lonely, left out, but that doesn't mean you are unlovable. Yeah. No one loves you.
you don't have any close friends. We have, और ये feeling आना, ये genuine feeling है. Yeah, it's really We truly always natural. feel that. Yeah, Even I did. Even you must Yeah. have I felt did, that, yeah. right? Huh. Even all of us, we feel the same way, and there is nothing wrong about this. Feeling lonely, it's totally fine. But इस loneliness को कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दो. You really need to know how to handle this. So don't be lonely. When you are alone and you start feeling lonely, be your own companion. Give yourself company. And you know what? This Christmas, like New Year is coming. I really want every person in our audience to go out with themselves for once. चाहे आप किसी लंच पे अपने आप चले जाओ या मूवी देखने अपने आप चले जाओ. Don't think यार कि कोई मेरा फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे जाऊं बाहर. इफ यू वांट टू गो सी दैट मूवी. अगर कोई जगह है यू वांट टू हैव लंच देयर, गो फॉर लंच. अकेले जाओ. ये भी नहीं कि कोई नहीं जा रहा तो मुझे किसने देखना है. कोई भी कपड़े पहनो. Just be independent. Go Yeah. out and live your life. Life Yes. is beautiful. You just need to know how to live this life. And this life is all about suffering. It is about suffering, but we can make that suffering better if we can make it, bearable by being our own companion, by finding true connections and true people to talk to. Don't isolate yourself. Talk to people. And when jab log nahi hai, talk to yourself. And it's the better way to talk to yourself. And yes, we are all trying. Yeah. We are all growing. We are all evolving. And this is the beauty of life. This is how everyone feels that. Yeah. This is how everyone learn, grow, evolve, right? And honestly, We are trying. and you should also try.